Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We have done solving the questions till 13 of exercise 8.1. So let's just start solving the remaining questions. Question number 14. Let me write the question here. Which is, we have an integral with the function cosecant t sine 3t dt. Okay, so cosecant t is basically equals to 1 over sine t, so we can write it like this. And the formula for sine 3t is basically equals to, since we know that sine 3t equals 3 sine t minus 4 sine cube t. So let's just write over here 3 sine t minus 4 sine cube t dt. An integral over here. Okay. So now we can split the LCM like this. 3 sine t divided by sine t minus 4 sine cube t divided by sine t dt. Okay. Let me just separate the integrals also over here in the same step. You can आप दो different steps भी कर सकते हो. But okay. From here we can cancel out the numerator and denominator जिसमें आपके पास sin t given है and we're left with only 3 dt. I just forgot to write dt over here. Okay. Minus this sin t will cancel out from the one of the sin t which is in the numerator. So you're left with 4. 4 आपके पास कौन सी टर्म है उसको इंटीग्रल के बाहर लिख दो and sin square t dt. Now we know the formula for sin square t. इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेंड करके 1 minus cos 2t all divided by 2, right? So let's just write it over here. 1 minus cos 2t divided by 2 dt. ओके ना, यहाँ से हम 2 और 4 की कैंसिलेशन कर सकते हैं. dt का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा? ओनली t, तो 3t माइनस. अब यहाँ पे आप इंटीग्रल को सेपरेट कर लो. फर्स्ट 2 dt, यहाँ पे 1 है आपके पास, दिस वन, एंड देन this minus and this minus will become positive. 2 cos 2t dt. 3t as it is minus the integral of this one will again t plus cos 2t का इंटीग्रल आपके पास क्या होगा? sin 2t divided by 2 and then plus c. अब यहाँ से आपके पास this 2 and this 2 will cancel out each other. इसको आप simplify कर लेंगे, you'll get t only as your answer and this sin 2t plus c. That's it. This is the answer for question number 14. Now let's see question number 15. 1 plus sin theta divided by cos square theta. आपके पास लिमिट्स गिवन है इसमें which are 0 से pi by 2, pi by 4 and then d theta. Okay, so the first step आप ये कर सकते हो LCM break. और इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 over cos square theta
plus sin theta and cos square theta. Just LCM break here. The rest of the thing will remain as it is. Okay, now let's see. अब इंटेग्रल को आप सेपरेट कर लें 0 से π/4 1/cos square theta d theta plus again 0 से π/4 sin theta divided by cos square theta d theta. ठीक है, इंटीग्रल को हमने कर लिया सेपरेट. नाउ वी नो दैट 1/cos square theta is actually equals to secant square theta, right? 0 π/4 this is actually equals to secant square d theta plus. अच्छा, यहाँ पे आपके पास इसको अगर मैं इस तरीके से सेपरेट करके लिखूं साइन थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास देयर आर टू cos थीटा इंटू cos थीटा, राइट? और फिर इसको फर्दर अगर आप नोटिस करो दिस साइन थीटा एंड cos थीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू tan थीटा और यहाँ पे आपके पास यू आर लेफ्ट विद 1/cos थीटा विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू secant थीटा. तो आप इस पूरी एक्सप्रेशन को इसके इक्वल लिख सकते हो tan थीटा इंटू secant थीटा के. तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे tan थीटा इंटू secant थीटा. ओके, अब आपने बस सिंपली इंटीग्रेशन कर देनी है. सीकेंट स्क्वायर का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट्स एक्चुअली इक्वल्स टू tan थीटा. और फिर अब इसके बाद हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास होती है सीकेंट थीटा एंड देन जस्ट अप्लाई द लिमिट. तो अब लिमिट्स आपके पास अप्लाई हो जाएंगी tan π/4 माइनस tan 0 प्लस secant π/4 माइनस secant 0. tan π/4 आपके पास होता है 1 की इक्वल माइनस tan 0 आपके पास 0 होता है. secant π/4 आपके पास होता है 1/2 की सॉरी √2 की इक्वल और secant 0 आपके पास होता है 1 की इक्वल. ओके, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट द आंसर √2. ये -1 और +1 will cancel out each other. This is question number 15. Okay, now let's see question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास गिवन है d थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर. ओके, तो लेट्स जस्ट डू द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1. ओके, अच्छा अब आप देखो दिस वन, ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा ये आपके पास एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, राइट? इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे हम, लेट्स जस्ट राइट इट लाइक दिस वे d थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 थीटा. ओके, नाउ यू विल बी एबल टू फिगर आउट. अभी आपके पास बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab and that's equals to a minus b whole square. Okay, इसमें आपके पास यहाँ पे ये -1 को यहाँ पे हम -1 को इंक्लूड करें इसके साथ. Okay, let's just make the expression that will be
1 माइनस थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर with the square root. Okay, now by using the substitution method, what you can do over here is let u is equals to theta minus 1 और फर्दर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे सो you'll get du equals to d theta. अब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है अपने एक्सप्रेशन में यहाँ पे एंड you'll get d theta की जगह पे du आ जाएगा. 1 will remain as it is minus theta minus 1 is equals to u and u square, right? With the square root. एंड दैट्स एक्चुअली इसका इंटीग्रल आपके पास होता है साइन इनवर्स के इक्वल और यहाँ पे u है तो u आ जाएगा प्लस सी. अब आप u की वैल्यू दोबारा से सब्स्टिट्यूट करोगे विच इज थीटा माइनस 1, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा माइनस 1 प्लस सी. दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17. Natural log of y divided by y plus 4y ln square y dy. This is your question. इसमें हम अगर आप नोटिस करो फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी कैन टेक y एज कॉमन. सो लेट्स जस्ट डू इट. y को कॉमन ले लो एंड यू गेट y इंटू 1 प्लस 4 ln square y dy. Now by using the substitution method we can take this as u. So let u equals 1 plus 4 ln square y. Now take the derivative of this given expression and you'll get 2 times 4 is 8 ln y again 1 over y dy, right? अब आपने वैल्यूज पुट करनी है. आपके पास ये एक्सप्रेशन विल बिकम लाइक दिस 1 over 8 ln y whole divided by y into 1 plus 4 ln square y dy. ये आपके पास एक्चुअल में एक्सप्रेशन था. वी नीड 8 ओवर हियर सो दैट्स वाई आपने यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. द ओरिजिनल क्वेश्चन विल रिमेन एज इट इज. अब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे. ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया. नाउ दिस वन दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू डी यू. ओके, और ये जो आपके पास है दैट्स एक्चुअली इक्वल्स टू यू. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस 1 over 8 du over u. ओके, सो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली है ln u है तो 1 over 8 ln u प्लस सी. अब u की वैल्यू दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे विच इज 1 प्लस 4 ln स्क्वेयर y प्लस सी. दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास है 2 पावर स्क्वेयर रूट y divided by 2 into under root y dy. Of course with an integral. तो यहाँ पे हम लोग स्क्वेयर रूट y को एज अ u ले सकते हैं. By using the substitution method we'll start solving this question. अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे which will be 1 over 2 under root y dy. मैं डायरेक्टली सोल्व कर रही हूँ उसको. Okay, now the integral will become 2u du. ओके, और अब आपकी इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 2u ln 2 प्लस सी. दैट्स इट. और बस u की जो वैल्यू आपने लेट की हुई थी उसको दोबारा से
पुट कर देंगे यहाँ पे and you'll get the final answer, which will be this. Simple. Okay, now question number 19 is your task to do it. We'll see how we can do question number 20. dt divided by t square root 3 plus t square. Okay. Let's just simplify it first before solving. So let's take 3 common from here. dt, t will remain as it is. Take 3 common from this expression, t square by 3. Okay. Now let's just split the under root t and square root 3 and square root 1 plus t square over 3. Now we can see over here we can apply the substitution method. We can take u equals t over under root 3. अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें we'll get 1 over under root 3 dt. तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन में दिस विल बिकम du. Okay, now let's just make the given integral under root 3 du square root 3 into square root 3u 1 plus u square over 3. ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा and you're left with du divided by square root 3u 1 plus u square. Let's just solve it further. 1 over into 3 is constant, तो इसको इंटीग्रल के बाहर लिख लेते हैं और इंटीग्रल में आपके पास यू लेफ्ट विद u अंडर रूट 1 प्लस u स्क्वायर. अब यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है कुछ सेकेंड हाइपरबोला की. तो जस्ट बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला टेबल you can simply write minus cosecant now substitute the value of u, you'll get the final answer. Okay, this is question number 20. Question number 21. 4t cube minus t square plus 16t whole divided by t square plus 4. Okay, if you notice, this is an improper fraction. So first, by using the long division method, हम इसको simplify करेंगे. Okay, तो इसको after simplifying it,
of course, like this, 4t minus t square plus 16t and t square plus 4. You'll get an expression like this from here, 4t minus 1 plus 4t square plus 4. Okay, so now complete it by yourself and do let me know if you got the answer or not. Okay, let's solve question number 22. X plus 2 under root x minus 1 whole divided by 2x under root x minus 1 dx. This is the question. Let's just break the LCM. X over 2x under root x minus 1 dx. And I'm gonna split the integral also. What I'm doing is simply एलसीएम ब्रेक कर रही हूँ और उसके बाद आपने इंटीग्रल को सेपरेट कर लिया, ठीक है, हर एक्सप्रेशन के साथ. सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी एक्स एक्स को कैंसिल कर देगा एंड फ्रॉम हेयर टू टू विल कैंसिल आउट ईच अदर. और अगर हम ये वाले एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे इसकी पावर अगर मैं इसको लिखूँ तो x माइनस 1/2 लिख सकती हूँ, राइट. और इसको हम जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे इट विल बिकम -1/2. और यहाँ पे ये जो 1/2 है आपके पास, इट्स अ कांस्टेंट, तो आप इसको इंटीग्रल से बाय भी लिख सकते हैं. तो इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, इसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, सो दैट्स व्हाई द पावर बिकम नेगेटिव. प्लस, ओके, यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन विल ऑल्सो कैंसिल आउट. तो आपके पास यू विल ओनली लेफ्ट विद 1/x. ओके, नाउ जस्ट टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन एंड यू, यहाँ पे आप पावर रूलर अप्लाई कर लोगे और आपके पास आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी ln x एंड ऑफ कोर्स प्लस से. तो यहाँ से दिस टू विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 होल पावर 1/2. वाई आई राइट नेगेटिव साइन प्लस ln x प्लस c. दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22. और आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट x माइनस 1. ओके, बोथ आर सेम थिंग. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास इंटीग्रल गिवन है विद लिमिट्स 0 to π/4 और इंटेग्रेंट आपके पास है 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा डी थीटा. ओके, कोस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके, हाफ एंगल फॉर्मूला. तो अब आप इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे. कोस थीटा की जगह पे 1 विल रिमेन एज इट इज and 1 minus 2 sine squared theta by 2. Okay, now expand 0 π/4 1 minus 1 plus 2 sine squared theta by 2. अब ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या रह जाएगा? 0 π/4 2 sine square theta by 2 d theta. ओके,
क्या हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे? ऑफ कोर्स, स्क्वायर रूट टू, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट। अब जो स्क्वायर रूट टू है वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो आप उसको इंटीग्रल से बाहर भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हो। दैट्स एक्चुअली इक्वल्स टू कोस थीटा बाई टू एंड 1/2, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। लेट्स से square root 2, now let's just apply the limit। cos, इसकी इंटीग्रेशन माइनस cos होती है, तो माइनस को मैं बाहर लिख रही हूँ, ठीक है। सो आपके पास आ जाएगी 1/2 कोस थीटा, थीटा की जगह पे पाई/4 लिखेंगे तो यूल गेट द आंसर 1/√2 - 1, एंड दिस टू विल मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा, इट इज़ लाइक दिस। इस टू को मल्टीप्लाई कर दें, 2/√2, और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, ये स्क्वायर रूट टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 × 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। ओके, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई करवा दें, अदरवाइज यहाँ तक भी ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास गिवन है सेकेंड टी प्लस कोट टी और इसका होल स्क्वायर है। ओके, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसको एक्सपैंड कर लें, विच इज a² + b² + 2ab। तो सीकेंट स्क्वायर टी प्लस कोट स्क्वायर टी प्लस 2 सीकेंट टी कोट टी एंड डी टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप अब क्या होने वाला है, इंटीग्रल को आप सेपरेट कर लें हर एक्सप्रेशन के साथ, कोट स्क्वायर टी डी टी प्लस 2 इज कांस्टेंट टर्म, तो इसको इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे, सीकेंट टी कोट टी डी टी। ओके, अब सीकेंट स्क्वायर टी का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होती है, टैन होती है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे टैन टी, टैन टी माइनस, इसकी होती है आपके पास, इसको सबसे पहले आपने लिखना होता है, बल्कि इसको हम पहले डायरेक्टली नहीं, मैं आपको ऐसे लिख के बताती हूँ। कोट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसीकेंट स्क्वायर टी -1 की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 2 विल रिमेन एज इट इज, सीकेंट टी और कोट टी, दैट्स एक्चुअली कोसीकेंट टी। अच्छा, यहाँ पे जब हम कोसीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस कोट टी, और फिर यहाँ से जब हम -1 का सॉरी डेरिवेटिव कह रही हूँ, इंटीग्रेशन लेंगे, और यहाँ से जब हम -1 ही इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा -3,
ठीक है। और यह हमारे पास कोसिकेंट टी था के इक्वल था। जब हमें कोसिकेंट टी का यहाँ से हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एल एन कोसिकेंट टी प्लस कोट टी। ओके, अब हम इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। tan टी माइनस कोट टी माइनस टी माइनस 2 एल एन कोसिकेंट टी प्लस कोट टी प्लस सी। ओके, this is the answer for question number 24. Okay, there are the two questions which you need to solve. So solve it and tell me if you will get the answer or not.